کیا بات ہے، تم اچانک پریشان ہو گئے؟ سر سلطان نے بلیک زیرو کی حالت دیکھتے ہوئے کہا۔ جی ہاں سر سلطان، میرا خیال ہے کہ مجرم یہاں سے رانا ہاؤس پر چھاپہ مارنے گئے، کیونکہ آپ نے F3 ایڈجسٹر کی بات کی۔ یہ فون ریسیور چیکنگ کی انتہائی جدید ترین مشین ہے اور دانش منظر کے خصوصی فون کا ریسیور رانا ہاؤس میں نصب ہے۔ بلیک زیرو نے باہر گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ارے میری کار کہاں گئی؟ وہ اسے تو لے آئے تھے۔ سر سلطان نے برآمدے میں پہنچتے ہی حیرت بھرے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، او آپ کی کار لائے تھے تو پھر اسے ساتھ لے گئے؟ آئیے باہر، میری کار موجود ہے، میں آپ کو کوٹھی پر پہنچا دوں گا۔ جلدی کیجیے، مجھے رانا ہاؤس کا بھی پتہ کرنے۔ بلیک زیرو نے کہا، تم کسی ممبر کو کہہ دو۔ سر سلطان نے اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے کہا، ممبر بھی موجود نہیں ہے۔ میں نے جولیا، تنویر اور صفدر کو فون کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن کوئی ریسیور اٹھا نہیں رہا تھا، اس لیے مجھے خود یہاں آنا پڑا۔ بلیک زیرو کی کوٹھی سے نکل کر ایک سائڈ پر بڑھتے ہوئے کہا، او اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے میری طرح انہیں کیا ہوا کر لیا، لیکن تم نے بتایا نہیں کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے؟ سر سلطان نے کہا، میں ان کی کال چیک کی لیکن پتہ نہ چلا، تو میں نے بھی F3 ایڈجسٹر ہی استعمال کیا اور اسے اس عمارت کا پتہ بتا دیا۔ یہ مشین ابھی چند روز پہلے عمران صاحب نے اکریمیا سے خصوصی طور پر منگوا کر دانش منزل میں فٹ کرائی تھی۔ بلیک زیرو نے جواب دیا اور سر سلطان نے سر ہلا دیا۔ وہ دونوں اس دوران ایک گلی میں کھڑی سیاہ رنگ کی کار تک پہنچ گئے۔ اس کا مطلب ہے کہ دونوں طرف یہی مشن بیک وقت استعمال ہو رہی ہے، سر سلطان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بلیک زیرو نے مختصر سا جواب دیا اور کار بیک کر کے سڑک پر لے اور دوسری لمحے اس کار تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی سر سلطان کی رہائش گاہ کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ سر سلطان کو ان کی کوٹھی کے سامنے ڈراپ کر کے بلیک زیرو نے کار واپس موڑی اور پھر اسے تقریباً اڑاتا ہوا رانا ہاؤس کی طرف بڑھنے لگا۔ رانا ہاؤس کے سامنے پہنچ کر اچانک اس کی نظر ایک سائڈ پر کھڑی کار پر پڑی تو چونک پڑے۔ یہ سر سلطان کی کار تھی جس پر وزارت خارجہ کی مخصوص پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ بلیک زیرو سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا، اسے فوری طور پر رانا ہاؤس کی فکر تھی۔ اس نے اس کا رانا ہاؤس سے ذرا آگے کر کے دور کیا اور پھر کار کے اندر لگا ہوا وائرلیس فون کا پیس ڈش بورڈ کے اندر سے نکالا اور رانا ہاؤس کا نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیا۔ دوسری طرف سے گھنٹی بجتی رہی لیکن کسی نے ریسیور نہ اٹھایا، تو بلیک زیرو نے رابطہ ختم کیا اور فیس کو واپس رکھ کر وہ دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ رانا ہاؤس کا فٹک بند تھا، اس لیے اس نے پہلے فون کرنے کا سوچا تھا تاکہ صحیح صورتحال کا علم ہو سکے۔ فاٹک کے قریب پہنچ کر وہ چونک گیا، کیونکہ فاٹک تو بند تھا لیکن چھوٹی کھڑکی ذرا سی کھلی ہوئی تھی۔ چونکہ بالکل معمول سی کھلی ہوئی تھی اس لیے دور سے نظر نہ آئی تھی۔ بلیک زیرو نے آہستہ کھڑکی کھولی اور پھر اس نے سر اندر کر کے جھانکا۔ عمارت میں مکمل خاموشی تھی۔ وہ اندر داخل ہو گیا، بغل سے لٹکی ہوئی مشین گن جس کے اوپر کوٹ تھا نکال رہا تھا میں پکڑ لی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہو گیا کہ عمارت خالی پڑی ہے۔ جوزیپا اور جوانا دونوں غائب تھے۔ سیڑھیوں کے پاس ہی شراب کی ایک بوتل پڑی تھی جس میں ابھی تک کچھ شراب موجود تھی اور باقی وہی کے وہیں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ انہیں اغوا کیا گیا، ورنہ جوزیف بھی اس طرح شراب کی بوتل زمین پر نہ گرنے دیتا۔ بلیک زیرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن اب یہ دونوں کہاں ہے؟ یہ بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ ممبرز بھی غائب تھے۔ وہ چند لمحے وہاں کھڑا سوچتا رہا، پھر ایک خیال آتے ہی تیزی سے بھاگتا ہوا واپس اندر چلا گیا۔ پہلے تو اسے سر سلطان کی طرف سے بھی فکر تھی، اس لیے اس نے صرف 3 ممبرز کو کال کیا تھا اور پھر خود ہی دوڑنا پڑا، لیکن اب اسے خیال آیا تھا کہ وہ باقی ممبرز کو چیک کر لے۔ اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور تیزی سے جولیا کے نمبر ڈائل کیے، لیکن جولیا کی طرف سے گھنٹی بجتی رہی اور کسی نے ریسیور نہ اٹھایا۔ اس نے کریڈل دبا کر اس بار کیپٹن شکیل کا نمبر ڈائل کیا، کیونکہ اس سے پہلے وہ صفدر اور تنویر کے نمبر ڈائل کر چکا تھا، اور جولیا کی دوبارہ بھی ریسیور نہ اٹھانے کے بعد اس نے صفدر اور تنویر کو کال کرنے کی بجائے کیپٹن شکیل کا نمبر ملایا اور گھنٹی بجتی رہی۔ اور پھر بلیک زیرو مایوس ہو کر کریڈل دبانے ہی والا تھا کہ چونک پڑا، کیونکہ دوسری طرف سے ریسیور اٹھائے جانے کی آواز سنائی دی تھی۔ یس شکیل اٹینڈنگ، کیپٹن شکیل کی نیند بھری آواز سنائی دی، شاید وہ سو کر اٹھا تھا۔ X2 بلیک زیرو نے سخت لہجے میں کہا۔ اوہ یس باس، کیپٹن شکیل کی ہوشیار اور مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ ظاہر ہے X2 کا لفظ سنتے اس کی نیند غائب ہو گئی ہوگی۔ کیپٹن شکیل تم فوراً کار لے کر
इचरटन रोड स्कूटी नंबर 25 पर पहुंच जाओ। ये स्कूटी फिलहाल खाली है, लेकिन कोई न कोई स्कूटी में ज़रूर आएगा। तुमने इसकी इंतहाई होशियारी से निगरानी करनी और मुझे पूरी रिपोर्ट देनी है। फ़ोन पर नहीं, ट्रांसमीटर पर, ब्लैक जीरो ने तेज़ लहजे में कहा। यस सर। दूसरी तरफ से कैप्टन शकील की जवाब दिया और ब्लैक जीरो ने रिसीवर वापस क्रेडल पर रख दिया। इसके ज़हन में पूरी तौर पर यही ख्याल आया था कि मुजरिम लाजिमन सर सुल्तान का पता करने आ गए, इस तरह इनको तलाश किया जा सकता है। इसके बाद इसने बाकी मेंबर्स को भी बारी बारी फोन किया। जब वहाँ से रिसीवर उठाया तो उसने क्रेडल दबा दिया, क्योंकि वो सिर्फ इनकी मौजूदगी चेक करना चाहता था। सिर्फ चौहान की तरफ से रिसीवर न उठाया गया था। इसका मतलब था कि जूलिया सफदर और तनवीर के साथ साथ चौहान भी अपनी प्लेट से गायब था। इसने रिसीवर रखा और फिर 30 कदम उठा तो वापस गेट की तरफ बढ़ गया। इसने फाटक की खिड़की के अंदर से लाके और फिर राना हाउस के खुफिया रास्ते से वो बाहर आ गया। मुजरिम बेहद चालाक और खयाल साबित हो रहे थे। वो अपने पीछे कोई क्लूज छोड़ जाते। ब्लैक जीरो को इन पर हाथ डालने का मौका न मिल रहा था। इसने इस कार की तलाशी का हुक्म भी दिया था, जो उसने जख्मी होकर बाहर निकलते हुए देखी थी, लेकिन तमाम मेंबर्स पूरे शहर में घूमते रहे, लेकिन वो कार कहीं नजर नहीं आ रही थी। सुल्तान की कार के मुतल्लिक भी इसने सोचा था कि इसकी तलाशी से भी मुजरिमों को ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन ये कार भी राना हाउस के सामने मिल गई थी। जोसेफ और जुआना की तरफ से उसे फिक्र न थी, क्योंकि वो दोनों अपनी तहफ़्फ़ुज़ कर सकते थे, लेकिन ये मेंबर्स गायब हो गए और मुजरिम का ये मसला इसकी समझ में ना आ रहा था। वो कार दौड़ाता हुआ दानिश मंजिल की तरफ बढ़ रहा था कि अचानक उसे इमरान का ख्याल आ गया। डॉक्टर सिद्दीकी ने शाम को बताया था कि इमरान अब ज़हनी तौर पर ठीक हो चुका है और आसानी से बातचीत कर सकता है, सिर्फ पूरी तौर पर हरकत नहीं कर सकता। इसलिए उसने सोचा कि इमरान को जाकर भी मिल जाए और अगर इसकी हालत दुरुस्त है तो इसे केस भी डिस्कस कर ले। शायद इमरान की कुपड़ी इसका कोई हल निकाले। चुनांचे इसने कार का रुख अस्पताल की तरफ मोड़ दिया। गोरात काफ़ी गुजर चुकी थी, लेकिन ब्लैक जीरो जानता था कि केस की बात सुनते ही इमरान फौरन बातचीत पर रजामंद हो जाएगा। बहरहाल उसे इतना इत्मीनान था कि उसने सर सुल्तान को पूरी तौर पर खतरे से निकाल लिया है। हाल कमरे में मौजूद लोहे की कुर्सी पर जोसेफ और जुआना के साथ जूलिया, तनवीर, सफदर और चौहान मौजूद थे। जोसेफ और जुआना तो बेहिस्सार कद बैठे हुए थे, जबकि बाकी अफराद की गर्दनें डलकी हुई थी। वो बेहोश थे। कुर्सी के पाए जमीन में गड़े हुए थे और इनके गिर्द लोहे के मजबूत राड लगे हुए थे, जिनकी वजह से वो सब न उठ सकते थे और न कुर्सी की गिरफ्त से आज़ाद हो सकते थे। इस लम्हे दरवाज़ा खुला और ब्राउन और मारकर अंदर दाखिल हुए। इनके पीछे दो मुसल्लह आदमी थे। ये वो आदमी थे जिन्हें ब्राउन ने मारकर से कहकर रोक लिया था। इस जुआना और दूसरे हबशी को एंटी-03 की इंजेक्शन लगा और दूसरों को भी होश में लाया। ब्राउन ने खून बेचते हुए कवर मारकर सर हिलाता हुआ जुआना की तरफ बढ़ गया। इसने जीप से एक बोतल निकाली, इसका ढक्कन खोलकर इसने बोतल जुआना की नाक से लगा दी। चंद मिनट बाद इसने बोतल हटा दी और आगे बढ़कर इसने उसे दूसरे हबशी की नाक से लगा दिया और फिर बोतल बंद करके इसने जीप में डाली और जीप से एक सिरिंज निकाली। इसकी सुई पर लगी कैप इसने हटाई और गैर मुल्की औरत के बाजू में सुई डालकर इसने सिरिंज में मौजूद मालूल के 3 कतरे इस गैर मुल्की औरत के बाजू में इंजेक्ट किए और फिर सुई बाहर निकाल कर इसने साथ वाले दूसरे आदमी के बाजू में वही सुई उतार दी। थोड़ी देर बाद इसने इस तरह चंद कतरे बेहोश आदमी के बाजू में उतार कर सिरिंज एक तरफ फेंकी और वापस आकर ब्राउन के साथ खड़ा हो गया। अभी चंद मिनट में ये सब होश में आ जाएंगे, मार करने का, और ब्राउन ने सर हिला दिया और फिर वाकई अभी चंद ही मिनट गुजरे होंगे कि जुआना, इसका साथी हबशी और चारों अफराद होश में आ गए। वो सब हैरत से उसे देख रहे थे, जैसे उन्हें यकीन ना रहा कि वो कहाँ मौजूद है। तुम्हारा नाम जुआना है और तुम्हारा ताल्लुक मास्टर पुलिस से था। ब्राउन ने आगे बढ़कर जुआना से मुखातिब होकर कहा, हाँ मेरा नाम जुआना है, लेकिन तुम कौन हो? जुआना ने सख्त लहजे में कहा, यह हबशी तुम्हारा साथी है, इसका क्या नाम है? ब्राउन ने इसके सवाल के जवाब देने की बजाय दूसरा सवाल कर दिया। इसका नाम जोसेफ है, जुआना ने जवाब दिया। और तुम सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स हो, अपने नाम बताओ। ब्राउन अब जुआना और जोसेफ से हटकर इस गैर मुल्की लड़की से मुखातिब हो गया। पहले तुम अपना तारुफ तो कराओ। इस गैर मुल्की लड़की ने सख्त लहजे में जवाब दिया, मेरा नाम ब्राउन है और मैं रेड फिंकर्स का चीफ हूँ, और ये भी सुन लो कि मेरे पास पूछ गुछ करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है।
मुझे तुम्हारी चीफ बास X2 एक फाइल चाहिए। मैंने तुम्हारी सर्विस का हेडक्वार्टर ट्रेस करना चाहा, लेकिन मैं इस इमारत में पहुंच गया जिसमें जॉन और जोसेफ मौजूद थे। मुझे मालूम है कि इस इमारत का ताल्लुक बराह रास्त सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर से है, इसलिए मैं इस जॉन और जोसेफ को यहाँ ले आया हूँ और साथ ही तुम लोगों को भी। अब तुम मुझे बताओगे कि सीक्रेट सर्विस का हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्राउन ने तेज कहा। अगर हम बता भी दे तब भी तुम वहाँ से फाइल हासिल नहीं कर सकते। एक बात और दूसरी बात ये कि हम में से किसी को सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर का इल्म ही नहीं। हमारी बात चीप सिर्फ फोन पर होती है, इस गैर मुल्की लड़की ने जवाब दिया। मुझे मालूम है, लेकिन ये जॉन और जोसेफ तो बहरहाल जानते हैं, क्योंकि इस फोन के जो तुम्हारे चीफ बास का असल रिसीवर इस पलनमा इमारत में है जिसमें ये दोनों पाए गए हैं, इसलिए लाजिमन ये जानते हैं। और सुनो मिस्टर जॉन, मुझे मालूम है कि तुम एक पेशेवर कातिल हो और मास्टर किलर्स के खात्मे के बाद इमरान की मुलाजिमत में आ चुके हो। पहले मुझे भी ये ख्याल आया था कि इमरान ही सीक्रेट सर्विस का चीफ X2 है, क्योंकि रिसीवर इस इमारत में और तुम वहाँ मौजूद हो और तुम इमरान के मुलाजिम हो। लेकिन फिर मुझे ये ख्याल छोड़ना पड़ा, क्योंकि इस इमारत पर रेड करने से चंद मिनट पहले मेरे X2 से फ़ोन पर बात हुई है, जबकि इमरान को तो मैंने अस्पताल पहुंचा दिया और या तो अब तक मर चुका होगा, या अगर मरा नहीं तो कम से कम 6 माह तक किसी सूरत भी अस्पताल से बाहर नहीं आ सकता। और जाहिर है कोई अस्पताल सीक्रेट सर्विस का हेडक्वार्टर नहीं हो सकता। इसलिए अब तुम मुझे बताओ कि हेडक्वार्टर कहाँ है। अगर तुम चाहो तो मैं तुमसे सौदा कर सकता हूँ, बोलो कितनी रकम चाहिए? ब्राउन ने जवाना से मुखातिब होकर कहा। मैं इमरान का मुलाजिम हूँ मिस्टर ब्राउन, मेरा किसी सीक्रेट सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं, और तुमने अभी इस बात का इकरार करके अपनी ज़िंदगी के लम्हात कम कर दिए कि तुम्हारी वजह से बास अस्पताल पहुँचाए। जवाना ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। मार कर कोड़ा ले आओ, मैं देखता हूँ कि इस अभिषेक की में कितनी जान है। ब्राउन ने होंठ काटते हुए साथ खड़े मारकर से मुखातिब होकर कहा। यस बास, मार करने का और तेजी से वापस दरवाजे की तरफ बढ़ गया। तुमने किस तरह मालूम किया कि चीफ बास को फोन रिसीवर इस इमारत में है? गैर मुल्की लड़की ने हैरत भरे लहजे में कहा। हमारी तंजीम दुनिया की जदीद तरीन वसाइल का हामिल है, इसलिए इसी बात ही मालूम करना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। ब्राउन ने कहा। तुम लोग सिर्फ सीक्रेट सर्विस का हेडक्वार्टर का पता मालूम करना चाहते हो, या ये चाहते हो कि चीफ बास से भी मिल लो? एक और आदमी ने ब्राउन से मुखातिब होते हुए कहा। हमें एक फाइल चाहिए जो सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर में मौजूद है, ब्राउन ने जवाब दिया। तुम मुझसे बात करो, मैं तुम्हें वो फाइल देता हूँ, इस आदमी ने कहा, और ब्राउन ने बुरी तरह चौंक पड़ा। क्या मतलब? तुम कैसे फाइल दे सकते हो? ब्राउन ने हैरत भरे अंदाज में कहा। तुम्हें फाइल चाहिए, मिल जाएगी, बोलो कितनी रकम दोगे? इस आदमी ने बड़े एहतिमाद लहजे में कहा। मुझे चक्कर देने की कोशिश न करो मिस्टर, मैं रिट फिंटर्स का चीफ हूँ, कोई मामूली आदमी नहीं हो, ब्राउन ने करख्त लहजे में जवाब देते हुए कहा। इसमें चक्कर की कौन सी बात है? सीधा साधा सौदा है, तुम्हें फाइल चाहिए और मुझे रकम, इस आदमी ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। पहले तुम बताओ कि फाइल कैसे हासिल करोगे? ब्राउन ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा। ये मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। सारी सीक्रेट सर्विस में चीफ बास से मुझ पर एतमाद करते हुए मेरा काम वो किसी तौर पर टाल नहीं सकता, इस आदमी ने जवाब दिया। सुना, अगर तुम सोच रहे हो कि इस तरह मुझे चक्कर देकर यहाँ से निकल जाओगे तो उसे भूल जाओ, ब्राउन ने कहा। मुझे यहाँ से निकलने की क्या जरूरत है? तुम चीफ बास से फोन पर मेरी बात करो और जगह बताओ, जाए फाइल पहुंचाई जाए, फाइल पहुंच जाएगी। हाँ, जिस आदमी से तुम्हें फाइल मिलेगी उस रकम देनी होगी। और अब सुन लो कि फाइल कीमत 50 लाख रुपए होगी, इससे कम नहीं होगी, इस आदमी ने कहा। तुम्हारा नाम क्या है? ब्राउन ने कहा। मेरा नाम सईद है, इस आदमी ने जवाब दिया। तुम अभी बच्चे हो मिस्टर सईद, तुम ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हारे कहने पर फोन करूंगा? इस तरह तुम्हारा चीफ बास इस कॉल के जरिए यहाँ का पता मालूम कर लेगा। अगर ऐसा न हुआ तो जो आदमी रकम लेकर जाएगी इसके जरिए वो हम पर हाथ डाल सकेगा। तो ये दोनों बातें बचगाना है, ब्राउन ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम जो चाहे सोचते रहो, तुम फाइल का कहा था, मैंने तुम्हें ऑफर कर दिया, अब अगर तुम नहीं चाहते तो न सही, इस आदमी ने जवाब दिया। जाहिर है इसका नाम सफदर था, क्योंकि सफदर का पूरा नाम सफदर सईद ही था। इसने अपने नाम का सिर्फ दूसरा हिस्सा बताया था। तुम सिर्फ मुझे हेडक्वार्टर का पता बता दो, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें छोड़ भी दूंगा और रकम भी दे दूंगा, ब्राउन ने कहा। जब हमें मालूम ही नहीं तो हम बताएंगे कैसे? फोन पर बात हो सकती है और तुम कराना नहीं चाहते, सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा।
मारकर नॉन चिकिंग मशीन का है। ब्राउन ने चंद लम्हे सोचने के बाद साथ खड़े मार्कर से मुखातिब होकर का जो कोड़ा लेकर वापस आ चुका था। बस वो तो हेडक्वार्टर में वैसे ही आदमी किसी खास मकसद के लिए बातें कर रहे। जब अहम तरीन शख्सियत के कत्ल पर से टस से मस नहीं हुआ तो सिर्फ रकम के लालच में वो फाइल नहीं दे सकता, ये नामुमकिन है। मार करने का ठीक है, लाओ कोड़ा मुझे दो, अब ये जवाना बताएगा। ब्राउन ने फैसला कुन लहजे में कहा। बस मेरा ख्याल है कि इस जवाना की बजाय इस गैर मुल्की लड़की पर कोड़े बरसाए जाए तो नतीजा जल्दी निकल सकता है। मार्कर ने तजवीज़ पेश करते हुए कहा। मार्कर तुम्हारी ये बात दुरुस्त है। ब्राउन ने कहा सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हारे हक में बेहतर है कि तुम अपनी जान बचाकर इस मुल्क से निकल जाओ, वरना अचानक जवान ने इंतहाई गुस्से लहजे में कहा। तो ब्राउन ने बिजली सी तेजी से घूमकर हाथ में पकड़ा हुआ कोड़ा पूरी कुव्वत से घुमाकर जवाना को मार दिया। शट अप की तेज आवाज हाल में गूंज और जवाना के बाजुओं और सीने पर से इसकी कमीज पट गई और जवाना के मुंह से सस्कारी सी निकल गई। तुम्हारी जुर्रत के तुम जवाना पर कोड़े बरसाओ, जवाना ने एक लख्त लहजे में चीखते हुए लहजे में कहा। ब्राउन ने दूसरा कोड़ा मारने के लिए बाजू उठाया ही था कि एक लख्त तेज कड़कड़ाहट की आवाज के साथ ही जवाना कुर्सी से राड टूटे और जवाना किसी बिजली की तरह उछलकर ब्राउन पर हमलावर हुआ। लेकिन इसके पैर निचले राड में फंस गए और वो मुंह के बिल फर्श पर गिरा। ब्राउन 2 कदम पीछे हटा और इसने बिजली की सी तेजी से कोड़ा मुंह के बिल नीचे गिरते हुए जवाना की पुष्ट पर मारा। उसे गोली मार दो, एक लख मार कर चीखते हुए कहा। नहीं रुक जाओ। ब्राउन ने एक बार फिर कोड़ा उठाते हुए चीख कर कहा और मुसल्लह आदमी जो अपनी गनों का रुख मारकर की आवाज सुनते ही जवाना की तरफ कर रहे थे एक लख अटक गए। ये मर गया तो हेडक्वार्टर का पता कौन बताएगा? ब्राउन ने चीख कर कहा और साथ ही तीसरी बार कोड़ा मारने के लिए हाथ उठाया था, लेकिन अभी इसका हाथ फिजा में ही था कि मुंह के बिल फर्श पर गिरे। जवाना का पिछला जिस्म बिजली की सी तेजी से सुखड़ा और इसके साथ ही इसकी टांगे फूस की सूरत में घूमती हुई पूरी कुव्वत से ब्राउन की सीने पर पड़ी और ब्राउन चीख मारता हुआ किसी गेंद की तरह उछलकर कमरे के खुले दरवाजे से बाहर जा गिरा। गोली मार दो, मारकर एक बार फिर चीखा, लेकिन जवाना ने सीधा होते हुए छलांग लगाई और मारकर को साथ लिए इन मुसल्लह अफराद से पूरी कुव्वत से जा टकराए और तीनों नीचे गिरे थे कि जवाना ने एक मशीन गन झपटे और दूसरे में कमरा रेट की आवाज और चीखों से गूंज उठा। नीचे गिर कर उठते हुए वो दोनों अफराद और मारकर फर्श पर गिरे और बुरी तरह भड़कने लगे। जवाना बिजली की सी तेजी से तड़पा और इसने मशीन गन का रुख दरवाजे की तरफ किया। वो भाग रहा है, उसे जिंदा पकड़ो, सफदर ने चीखते हुए कहा और जवाना दरवाजे की तरफ भाग पड़ा और फायरिंग करता हुआ दरवाजे से निकला और राहदारी में दौड़ता गया। वो भाग गया, न जाने कहा गया है। थोड़ी देर बाद जवाना ने वापस आते हुए कहा, फिर इसने इनकी रस्सी पुष्ट पर आकर फायर में लगे हुए बटनों को टुकड़े मार कर रस्सी को राड हटे और सब आजाद हो गए। थैंक यू जवाना, मैं इस ब्राउन को चक्कर देने की कोशिश तो की थी लेकिन वो काबू नहीं आया। सफदर ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर फर्श पर पड़ी हुई दूसरी मशीन गन उठाते हुए कहा। इस लम्हे बाहर से तेज खत्म किया, सुनाई दी वो सब चौंका और तेजी से दरवाजे की साइड में दीवार से लग गए। इमारत तो खाली मालूम होती है। इस लम्हे खबर की आवाज सुनाई दी और सब चौंक पड़े। खबर तुम हो? एक लख सफदर ने चीखते हुए कहा। सफदर तुम? हाँ मैं खबर हूँ। कमरे से बाहर राहदारी से आवाज सुनाई दी और सब दीवार से हट गए। इसी लम्हे खबर हाथ में मशीन गन उठाते दरवाजे पर नजर आया। ओह तुम यहाँ कैसे पहुंच गए? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। चिप बास ने हमें भेजा और मुजरिम मार दिए। तुमने कैसे? खबर ने अंदर दाखिल होकर मार कर इसके साथियों की लाशें देखते हुए कहा। असल मुजरिम निकल गया है, तुम अकेले हो? जूलिया ने कहा। नहीं, बाकी साथी बाहर मौजूद है, मैं सूरत-ए-हाल जायजा लेने अंदर आ गया हूँ। खबर ने कहा। तुमने यहाँ से किसी को निकलते नहीं देखा? सफदर ने पूछा। नहीं, मैं तो दीवार फांद कर अंदर आया हूँ, खबर ने जवाब दिया। लेकिन चिप बास को कैसे मालूम हो गया कि हम अगवा हुए? हमें तो प्लेटो से अगवा किया गया था और फिर इस इमारत का पता कैसे लगा? जूलिया ने होन काटते हुए कहा। पूछा, ये तो मुझे मालूम नहीं, बस मुझे तो हुक्म मिला कि मैं फौरन यहाँ पहुँच जाऊँ। बाकी साथी ये पहुँच रहे और कोठी पर रेड करना है क्योंकि वहाँ बेजाना जूजिब के साथ साथ तनवीर, जूलिया, सफदर और चौहान कैद है। चुनांचे में यहाँ पहुँच गए, बाकी साथी बाहर है। खबर ने जवाब दिया। कमाल है, ये बास कोई भूत लगता है या फिर उसे इल्हाम होता है, तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा।
खामोश रहो तनवीर, अगर जुआना कुर्सी की ग्रिप न तोड़ता तो तुम आज़ाद न हो सकते। और ऐसी सूरत हाल में अगर चीफ बास भी हमारी खबर न रखे तो हम कब्रों में पहुंचे, न जाने कितनी मुद्दत गुजर चुकी होती। जूलिया ने कहा और सब सर हिलाते हुए इस इमारत से बाहर निकलने लगे, लेकिन फिर सफदर ने इस इमारत की तलाशी की तजवीज़ पेश की और जूलिया ने इसकी तजवीज़ की हिमायत कर दी। आप लोग तलाशी ले, मैं ट्रांसमीटर पर बास को कॉल कर लूँ। खावर ने जेब से ट्रांसमीटर निकालते हुए कहा। खावर कॉलिंग ओवर। खावर ने ट्रांसमीटर ऑन करते हुए कहा X2 और फौरन ही दूसरी तरफ से आवाज़ सुनाई दी और खावर ने तफसील से सारी बात बता दी। कोठी की तलाश लेकर मुझे रिपोर्ट देना है। दूसरी तरफ से X2 ने जवाब दिया और इसके साथ ही राबिता ख़त्म हो गया। तो दोस्तों आज के लिए यही काफ़ी है, मिलते हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह अगले किस्त के साथ। तब तक अपने आप का और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम।